جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ زخم بالآخر مجھے اندھا کر دے گا. آج سے تمہیں مختار کو ایک آنکھ کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا. تمہیں اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے 2 آنکھوں کی ضرورت ہے، تو شک مت کرو. یہ زخم تمہیں اندھا نہیں کر سکتا. یاد ہے جس دن تم سے میرا نکاح ہوا تھا میں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ جی ہاں، تم نے پوچھا تھا عمرہ مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کیوں تم بے شمار مقام اور منصب والوں کے رشتوں کے ہوتے ہوئے مجھ کسان کی بیوی بننا چاہتی ہو؟ بابا مجھے پاگل کہا کرتے تھے. تم پاگل ہو گئی ہو عمرہ؟ اتنے مقام و منصب والے لڑکوں کو تمہیں پانے کی تمنا ہے اور تم ایک کسان کو لیے بیٹھی ہو کہ جس کے پاس سے گھاس پھوس کی بو آتی ہے. ظاہر ہے عمرہ اور دوسری لڑکیوں میں یہی تو فرق تھا کہ انہیں ایک شوہر چاہیے تھا اور مجھے ایک ہم سفر. انہیں ایک ساتھی چاہیے تھا اور مجھے ایک ہمراہی. مجھے ایسی منزل چاہیے تھی کہ جس کی میں مرید بن جاؤں، منزل کے جس کی نشانی محبت علی ہے. مختار اور اس کی آتشی آنکھیں تو صرف ایک بہانہ تھا. ویسے میں نے غلط انتخاب نہیں کیا. تمہاری آنکھ کا زخم میرا گواہ ہے. بہت خوب میرے ہم سفر سنو، میں کل صبح سورج نکلتے ہی نکل جاؤں گا. کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اپنا راز صرف تمہیں بتا رہا ہوں عمرہ. میں مکے کی طرف جا رہا ہوں. تو میں تمہاری ہم سفر بن جاؤں گی. تم تو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہتے نا؟ تنہا نہیں ہوں، تم میرے دل میں ہو. کاش میں تمہارے ساتھ بھی چل سکتی. عمرہ، عمر سعد اور شمر ابن ذوالجوشن جیسوں نے میری راہ پر جال بچھائے ہوئے ہیں. تمہارے ہوتے ہوئے میں ان کے جال سے نکل نہیں پاؤں گا. تم نے مجھے زندان کے واقعات اور محسن تمار کے بارے میں بتایا، تو پھر تمہارے قیام کا کیا ہوگا جب تم کوفے سے فرار کرنا چاہتے ہو؟ فی الحال قیام کے لیے حالات مناسب نہیں ہیں عمرہ. مجھے اس قیام کے لیے کم از کم 1 سال کا وقت چاہیے. میں نے سنا ہے آل زبیر نے مکے میں یزید کی مخالفت کا پرچم لہرا دیا ہے اور یزیدیوں سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. میں مکہ کی طرف جاؤں گا اور اگر ہو سکا تو آل زبیر کے ساتھ مل جاؤں گا اور یزید کے چہرے پر خاک مل دوں گا. کاش مکہ کے بجائے ایران چلے جاتے مختار. تم ایران میں جلدی منزل پالو گے. تم ٹھیک کہتی ہو عمرہ، مگر مجھے اپنے دل کو روحانی غذا دینی ہے. میں اپنی روح کو آب زمزم سے دھونے جا رہا ہوں. ممکن نہیں کہ ابو اسحاق اپنی منزل کے بارے میں تمہیں کچھ بتائے. اس کا مطلب تم نے ضربی کو پہچانا ہے. اگر ضربی کو نہیں پہچانتے تو اس کا مطلب تم ابو اسحاق کو بھی نہیں جانتے. میں نے ابو اسحاق کو پالا ہے بھائی. کہاں ہو تم؟ ہماری دوستی بھی بڑی پرانی ہے بڈھے. بڈھے ہو گئے تمہارے ہوتے سوتے. کہو تو آنکھیں بند کر کے بتا دوں کہ ابو اسحاق گھر سے نکل کر کیا کرے گا. کیا کرے گا؟ شرط لگاؤ بھائی، جیب ڈھیلی کرو. ایک بار شرط لگا لو تاکہ ضربی آنکھیں بند کر کے غیب کی باتیں کرے. مرد میدان ہو تو شرط لگاؤ. اپنی منزل کا نہ بتائے تو کیا؟ شرط ختم. منظور ہے، مگر اپنی آنکھیں اچھی طرح بند کرو گے. ٹھیک ہے، میں پلٹ جاتا ہوں تاکہ تم مطمئن رہو. اس نے اپنا جوتا پہنا، آگے گیا.
अब उसने बानो उमरा से कुछ कहा। बानो उमरा से जुदा हुआ, दुलदुल को एक नजर देखा, फिर एक नजर हमें देखा, हमारी तरफ आया। अब कहेगा ज़रबी अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। ज़रबी, जी अबू इसाक। अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के चेहरे पर मला। दुलदुल के कानों में एक विर्त पड़ा। दुलदुल ने उसे सूंघा, उसने भी दुलदुल को प्यार किया। अब आया हमारी तरफ के बानो उमरा के बारे में हुक्म करे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक जो मांगे उसे दोगे। ज़रबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। जो भी मांगे मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक उसे दोगे। खुदा ने चाहा तो कहाँ का इरादा है अबू इसाक? जहां मुझे तकदीर ले जाए। मैं जहां भी रुकूंगा तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। बिन कामिल, कियान, तुम दोनों मुख्तार के दो बाजू हो। तुम्हारी वफा पर नाज करता हूं। मेरी गैर मौजूदगी में जहां तक हो सके साथी जमा करो। मंजिल का मत पूछो, क्योंकि उमर साहिद और शिमर जैसे नापाक लोगों के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। जब अपनी मंजिल को पहुंच जाऊंगा तो अपने बारे में तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। एक आध दिन तक मुजाहिमत करके दुश्मन को धोखा देते रहो। ऐसे रहना कि दुश्मन ये समझे कि मैं अब तक कूफा में हूं। अबू इसाक, इतनी इजाजत दो कि कोई साथी तुम्हारे साथ जाए। नहीं बिन कामिल, ये सफर मुख्तार के इम्तिहान का सफर है। हमारे ख्वाब की ताबीर इसी सफर से वाबस्ता है। मुख्तार को ये रास्ता अकेले ही तय करना होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ मुख्तार, खुदाए काबा तुम्हारा मुहाफिज है।
तुम रहजन हो, मुसाफिर हूं। कहाँ जा रहे हो? क्यों? क्योंकि मौत की सिमत जा रहे हो। मजबूरी है। सहरा से वाकिफ हो? तुम लोगों जितना नहीं। मजीद आगे जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि सहरा क्या होता है। इस सहरा से अकेले गुजरना नामुमकिन है, वो भी उस सवारी के साथ जो तुम्हारे पास है। सहरा की सवारी ऊंट है, घोड़ा नहीं। तो ज्यादा सफर क्या है तुम्हारा? कुछ मुख्तसर सा रोटी पानी है। लगता है तुम सहरा और उसकी मुश्किलात से अनजान हो। मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने घोड़े को एक मादा ऊंट से बदल लो जो दूध देती हो। सिर्फ दूध और ऊँटनी के साथ ही इस सहरा से जिंदा सलामत जा सकते हो। तो तुम लोग क्यों यहाँ सफर कर रहे हो? जाहिर है अनजान रास्ते छोटे होते हैं, बशर्ते के रास्ते जानते हो तो। क्या अपने नाम को भी अपनी मंजिल की तरह छुपाना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। अगर चेहरे से दस्तार उठा लो तो शायद तुम्हें पहचान लूं। मेरा नाम अबल गरक है, कबीला सकीफ से। अबल गरक? मुझे पहचान लिया तुमने? तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मैं मुख्तार हूं। मुख्तार? ये तुम हो अबू इसाक? खुदा की हिकमत तो देखो, उस जगह दुआ कबूल करता है जहां सोचा भी ना हो। मुझे आरजू थी कि तुम्हें करीब से देखूं और तुम्हारा हाथ चूम सकूं। तुम कौमे सकीफ के लिए फख्र का बाइस हो अबू इसाक। तुम्हारी शुजाअतों का चर्चा सुना है मैंने सकफी शेर। तुम पर दरूद, खुदा तुम्हारी पुष्ट पनाही करे। अरे मेरे बेटे, अबू इसाक की ऊँटनी के दूध से पजीराई करो। नहीं शुक्रिया अबल गरक। तुम्हारी आंख को क्या हुआ अबू इसाक? जख्म है जो एक दुश्मन ने मुझे लगाया है। उनके हाथ नाकारा हो जाएं। ये दुश्मन के मुख्तार से डरने की निशानी है। वैसे एक बात तो है कि जो मुख्तार को जख्म लगा सके वो कोई माहिर लड़ने वाला ही होगा। ऐसे कदमों के निशान मेरे सामने छोड़ करके कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारे बारे में इब्ने मरजाना की कैद की खबर मिली थी मुझे। उसकी कैद से कैसे भागे अबू इसाक? मैं भागा नहीं, जिंदान से आजाद किया गया है ताकि मुझे शहर बदर करें। बिस्मिल्लाह मुख्तार, नाचीज सा नजराना है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया नौजवान, अभी दिल नहीं चाह रहा। पियो अबू इसाक, कुछ ताजा दम हो जाओगे। मुझे रास्ते की सख्तियों की आदत करनी होगी। खुदा की कसम अगर दूध पी लेते तो तुम वो मुख्तार ना होते जिसे मैं जानता हूँ। आप बेफिक्र होके पी सकते हो। ममनून हूँ, काफी लजीज है। खुदा का शुक्र है कि मुख्तार के मामले में कम से कम इस दूध के प्याले के जितना अजर का हकदार बन गया। मुझे माफ कीजिएगा कि आप लोगों पर शक किया। बिल्कुल ठीक कदम उठाया तुमने। हमारा मुख्तार जीरक है, इसका होश तलवार से ज्यादा खतरनाक है। जीरक का क्या मतलब? यानी होशियार, यानी समझदार। मतलब यही जो तुमने देखा। जब तक मैंने दूध न पिया, इसने न पिया। खुदा न खास्ता दूध में जहर होता, अगर पी लेता तो खाकम बदहन मर जाता। खुदाया, मुझे मरने से पहले इसके कयाम की खबर सुना दे। कब फर्जंदे रसूल के कातलों को उनके गिनामने अमाल की सजा दोगे अबू इसाक?
इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है बरगरक। कसम खाता हूं कि जितना खून याह्या इब्न ज़करिया के क़िसास में बहाया गया उससे कहीं ज्यादा कातिल अल हुसैन का खून बहाऊंगा। जाओ ये खबर हुसैन के आज़ादारों को पहुंचा दो, कहो मुंतज़िर मुख्तार रहे। तुम्हें क्या लगता है दोस्त, एक तन्हा खैमा इस बेआब हो गया सहरा में मशकूक है ना? क्या कहते हो, कोई जाल तो नहीं? कुछ सुन के देख लो, कुछ सुनने की कोशिश करो। बहुत खूब, चल कर देखते हैं कि तकदीर ने इस खैमे में हमारे लिए क्या फैसला किया है। खैमे के रहने वाले, क्या मेहमान नहीं चाहिए? कोई अंदर है क्या? अगर जरा सा भी हिले तो पूरा खंजर तुम्हारे गले में घोंप दूंगी। अपनी तलवार मुझे दे दो। यकीन करो मैं कोई डाकू नहीं। बकवास बंद करो। ये खंजर इतना तेज है कि हाथ के एक इशारे से तुम्हारी जान ले लेगा। अपनी तलवार मुझे दे दो। हाथ पीछे। हाथ पीछे, जल्दी। अब पलट सकते हो। माफ करना बहन, मैं तुम्हारे खेमे में बगैर इजाजत घुसना नहीं चाहता था। मैंने आवाज दी मगर जवाब नहीं मिला। नहीं सुनना, झांकने चले आए ताकि खेमे के अंदर के राज से आगाह हो जाओ। इतना नहीं सोचा कि खेमा कोई सहरा का पौधा नहीं है, कोई इसका मालिक भी होगा। मालिक की इजाजत के बगैर क्यों घुसे? आप बरहक हैं, मुझसे गलती हुई है। कौन हो तुम? मुसाफिर हूँ। ये नहीं पूछा क्या हो, मैंने पूछा कौन हो। आदमजाद हूँ। ओहो, मैं समझी सहराई जानवर हो। मैं अपने दुश्मनों की वजह से गुमनाम सफर कर रहा हूँ। अपनी मंजिल को भी छुपाऊंगा ताकि मेरे कदमों के निशान न ढूंढ लें। कैसा अहमक दुश्मन है तुम जैसा बेहुदा इंसान क्या किसी का खौफ रखेगा? ये दुश्मन आखिर है कौन जिसके खौफ से सहरा की तरफ निकले हो? मेरे दुश्मन कुछ मुट्ठी भर जानवर हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के घराने को नैनवा के सहरा में टुकड़े टुकड़े कर डाला। इन लोगों को इंसान का खिताब देना इंसानियत की तौहीन है। अब तो वाजिब है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो। मैं दश्त नैनवा के एक शहीद की बीवी हूँ। तुम जैसा शख्स जो यजीदियों के खौफ से सहरा की तरफ निकला है, उसने जुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा। तुम मरहूम जुहैर इब्न कैन की बीवी हो? हाँ, मेरा नाम दुल्हन है। तुम कौन हो? मैं मुख्तार हूँ, पेशर अबू उबैदा सक़फ़ी। तो तुम हो वो मुंतकिम कर्रार? मुंतकिम कर्रार? हाँ, ऐसा इंतकाम लेने वाला जो शदीद हमले करता है।
माफ करना बहन, तुम इस सहरा बरहूत में तन्हा क्या कर रही हो? ये एक पेचीदा कहानी है। मैं इस मुकाम पे जुहैर से अलग हुई थी। जुहैर ने जब अज़्म हुसैन कर लिया तो मुझे तलाक दे दी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद दुश्मन मुझे उसकी बीवी होने के जुर्म में तकलीफ पहुंचाए या कैदी बना के ले जाए। मैंने कसम खा ली कि जब तक यजीद की मौत की खबर न सुन लूं, इस सहरा से हिलूंगी नहीं। मैं जुहैर की तलाक का सिला चुकाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, जुनून इसी को कहते हैं। मैं जुहैर को जंग यौमुल जिस्र से जानता हूं, वही जंग जो कादसिया की फतह का बायस बनी। उन दिनों मैं एक 13 साला नौजवान था। मेरे मरहूम वालिद साहब मुसलमानों की फौज के सरदार थे। मुझे भी अपने साथ मैदान जंग ले गए थे ताकि बकौल उनके मैदान को पहचान। उन दिनों जुहैर एक दिलेर और शुजा नौजवान था जो कि बगैर परवाह के मर्दाना वार लड़ता था। वाकईन शुजाअत और दिलेरी में अपनी मिसालात था। वो जब जब मैदान में जाता था, मेरे बाबा मरहूम मुझसे बड़ी हसरत के साथ ये चाहते थे कि मैं उसे गौर से देखूं और गैरत और शुजाअत सीखूं। मैं बेवकूफ बच्चा था जो जुहैर से हसद करता था। बहरहाल मेरे बाबा के कहने पर जुहैर ने मुझसे चाहा कि हम जंग की मशक करें, मगर मैं हर दफा सर के दर्द और पेट के दर्द का बहाना कर लेता था, मगर उसके साथ जंग की मशक करने पर आमादा नहीं होता था। मेरे मरहूम बाबा उसी जंग में शहीद हुए। बाबा की मौत के बाद मुझे कम उम्री की बिना पर कूफा भेज दिया गया। उसके बाद फिर मुझे जुहैर की कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि कई साल के बाद सुनने में आया कि एक नामवर ताजिर हो गया है और खूब दौलत कमाई है। ठीक सुना था। जुहैर साल साल तिजारत में मसरूफ रहा और जंग और हुकूमत में उसका कोई दखल नहीं था। उसका मानना यह था कि दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग रसूल खुदा की नाराजगी का बायस बनता है। तो फिर क्या हुआ कि उसकी राय बदल गई? क्या हुआ कि दुनिया से दिल हटाकर नैनवा के काफिले में पहुंच गया? बहुत अजीब सी दास्तान है मुख्तार, बहुत अजीब। हम हज को गए हुए थे। हज के बाद कूफे के अज़्म से निकले तो मक्के के करीब ही मौला हुसैन का काफिला नजर आया। चंद मंजिलों तक हमारा और मौला हुसैन का रास्ता एक ही था। जुहैर को पसंद न था कि मौला हुसैन के काफिले के साथ सफर करे। हम रुक गए ताकि मौला हुसैन एक मंजिल आगे निकल जाएं। जब मौला हुसैन चले जाते थे हम रुक जाते थे, और जब मौला हुसैन रुकते थे हम आगे बढ़ जाते थे। तकदीर ने एक मंजिल में दोनों काफिलों को मिला दिया। मौला हुसैन ने कासिद भेजा और जुहैर को अपने हुजूर तलब फरमाया। दुनिया का काम बड़ा निराला है। जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझने की ये जुहैर इब्न कैन का काफिला है तो मुझसे दस्तबरदार न होंगे। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारे। तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कुफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं मालो तजारत का बहाना करूं।
मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है। तिजारत करता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। जुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूँ जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए हद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो जुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए हद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंदे रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता। ये सारे बहाने डर की निशानी है। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो जुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने जुहैर को बुलाया था और जुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमजोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह जुहैर इब्ने कैन की मिसाल देंगे। दुल्हन मैं जाने के लिए आया हूँ। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ जुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन। मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माले दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूँ। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा। कूफियों के कई इंसानुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ, अपने बच्चों और मां की खबर लो। बच्चे और माल तुम्हारे बगैर मेरे किस काम के हैं? दुल्हन, मौत हर जानदार का मुकद्दर है। आज न मरूं तो कल या परसों तो मरूंगा। मौत पर सब्र करना चाहिए, चूंचरा नहीं। तुम्हें तो मौला हुसैन के पास जाने से ही इनकार था। मैंने भेजा था तुम्हें। क्या ये इंसाफ है कि अकेले चले जाओ? मुझे ये रिहाई तुम्हारे तो फिल्म मिली है दुल्हन। खुदा की कसम अगर औरतों पर जहाद वाजिब होता तो हम एक साथ मिलकर मौला की रकाब में जाते। मौला हुसैन के अहले हरम भी है जुहैर। काश ना होते दुल्हन। मौला की सारी मजलूमियत उनके बाल बच्चों का होना है। तुम क्यों आना चाहती हो? जिद मत करो दुल्हन। जैसे ही तुम्हें तलाक दे देगा फिर इख्तियार तुम्हारा अपना है। दुल्हन, खुदा गवाह है कि ये तलाक आशिकों की तलाक है। इसके अलावा कुछ और मत समझना। अच्छा हुआ दुल्हन, अब तुम पुरसुकून होकर मौला हुसैन की हम सफर बन सकती हो। नवी मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे एहतिमाम हुज्जत कर दी
اور فرمایا میں نے تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، جو بھی رکے وہ یہ جان لے کے کل مارا جائے گا۔ بعض اصحاب نے اظہار وفاداری کیا، زہیر نے بھی ایک خوش آواز بلبل کی طرح آواز اٹھائی، جب ہم برحق ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا، کیونکہ ہم رسول خدا کے دیدار کو جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور اسی طرح 1000 بار مروں اور زندہ ہو جاؤں، آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ مولا نے تمام مشعلیں بجھوا دی تاکہ جو بھی چاہے چلا جائے اور روشنی سے نہ شرمائے۔ او ذل جوشن کے بیٹے، میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو، اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پیر مار رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دل سے حسین کے خلاف لڑنے پر مائل نہیں ہے۔ یہ تم ہو جو سب کو بھڑکا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو، جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ خدا کی قسم دنیا کا مال و مقام فانی ہے اور بروز قیامت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واز بند کرو، تم میدان جنگ میں ہو، مسجد کے ممبر پر نہیں۔ زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو۔ ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے جن کی تلوار ان کے ہاتھوں میں مستی کر رہی ہے۔ اے کوفے والو، یہ میں ہوں زہیر ابن قین بجلی۔ تم میں سے زیادہ تر مجھے جانتے ہو یا میرا چرچا سن ہی چکے ہوگے۔ تاجر ہوں اور دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں۔ میں رسول خدا کی خدمت میں پیش رہا ہوں اور چاروں خلفاء کے ادوار میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ تم لوگ ایسی بدنصیب امت ہو جو اپنے ہی نبی خدا کے نواسے پر دیکھ کھینچتے ہو۔ میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جانتا۔ اے ابن قیم، تم تو آل علی سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے تھے۔ تم نے امیر المومنین یزید کی بیعت توڑ کر حسین کی طرفداری کیسے اختیار کر لی؟ بتاؤ۔ ہاں تم سمجھتے ہو حسین عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے وزیر اعظم بن جاؤ گے؟ ہاں فرض کیا ہم کوئی ایسا خیال رکھتے بھی ہوں، مگر اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں، عراق کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانیں؟ خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غرض سے عراق نہیں آئے۔ ان کی کوئی اور نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے، ان کی کوئی آرزو نہیں سوائے تمہاری رہائی کے۔ مولا حسین ظلم کرنے والوں میں کبھی نہ تھے، ان پر لگائے گئے الزامات تہمت کے سوا کچھ نہیں تھے اور یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ خاموش، ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام۔
इब्ने जुलजोशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्द नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़हर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शहर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिमर? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हूँ। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिमर नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।
زہیر لمحے بھر کے لیے ٹکنا نہیں چاہتا تھا. میدان کی طرف جانے کے لیے اس بچے کی طرح تھا جو ماں کے لیے باہیں پھیلایا ہوا ہو. نماز کے بعد شدید سردی اور پیاس کے بعد میدان کی طرف گیا. بعد میں زہیر کی مولا حسین سے ملاقات کی. مختلف باتیں سننے میں آئی کہ جن کے بارے میں زہیر نے کچھ نہیں بتایا. کیسی باتیں؟ مثال کے طور پہ یہ سنا کہ مولا حسین ایک ملکوتی لوح زہیر کو دکھایا تھا جس میں شہدائے نینوا کے نام تحریک تھے اور زہیر ابن قین اور شہداء کی تعداد لکھی ہوئی تھی. یا یہ کہ مولا حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں سے اسے سب کچھ دکھا دیا تھا. نصیب زہیر کے جو قافلہ عشق سے پیچھے نہ رہا. غم کھاؤ مختار کہ تم قافلہ عشق تک نہ پہنچ سکے. خدایا کیا حکمت ہے تیری، کیا حکمت ہے اس رہ جانے اور نہ پہنچنے میں. مختار وہی جس نے حضرت علی ابن الحسین کو بیمار بنا دیا تاکہ شیعہ بغیر امام کے نہ رہ جائیں. اسی نے تمہیں قیدی بنا دیا تاکہ شیعہ منتقم کے بنا نہ رہ جائیں. تم دست انتقام خدا ہو مختار. تو پھر مکہ جاؤ، رمی جمرہ کرو، خلیل کی پیروی میں اپنے اندرونی بتوں کو توڑ دو اور اپنے جسم کو آب زمزم سے غسل دو. عاشور کے داغ کھانے والے دل کی تسلی چاہتے ہیں مختار.
اهلا وسهلا خوش آمدید. ممنون ہوں کہ آپ نے اجازت دی. تم تو کہنے والے ہو مختار. تمہارے مرحوم چچا میرے بابا علی اور بھائی حسن کے قابل اعتماد تھے. آپ لوگوں کی آل علی سے محبت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. تمہاری میرے قریب چچا زاد بھائی مسلم کی میزبانی اور جو حمایت تم نے اسے کی اور تمہاری اسیری کی خبر مجھے تفصیل سے ملی ہے. تمہاری آنکھ کا زخم کیسا ہے؟ شکر خدا اب بہتر ہو رہا ہے. محفوظ رہو انشاءاللہ. آپ نے میری عزت بڑھا دی. کیوں تکلفات میں پڑتے ہو مختار؟ ہم دونوں کے سینوں میں وہ راز ہیں کہ ہم مدتوں بیٹھ کر درد دل اور حسرت کر سکتے ہیں. ہم اس قافلے سے پیچھے رہ گئے جو ملکوت کی طرف جا رہا تھا. مجھے یقین ہے کہ اس جدائی میں کوئی حکمت ضرور ہوگی. اس کی حکمت ارادے کے لنگڑے پیر ہیں وثاق. آپ کو حق ہے کہ میری سرزنش کریں. میں تمہاری سرزنش نہیں کر رہا بندے خدا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. یہ لنگڑے پیر باعث ہوئے کہ ہم سفر بنتا اپنے مظلوم بھائی حسین کا. کٹ جائے پاؤں، کٹ جائے پاؤں، کٹ جائے پاؤں. میں حجاز آیا ہوں تاکہ اپنے جیسوں کی غفلت کا ازالہ کر سکوں. کیسے ازالہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاتھ بڑھائیے تاکہ بیعت کر کے اہل علی کا حق غاصبوں اور ظالموں سے چھین سکوں. مجھے اپنا پیشہ مانتے ہو؟ آپ حیدر کرار کے فرزند ہیں، وارث خون شہید مولا حسین. خدا جانتا ہے کہ میں بھی قلبی طور پر حضرت سجاد کو اپنا امام زمانہ مانتا ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے حکم جہاد کے بارے میں ان کا فرمان معلوم ہے. میں اور آپ شرعاً حق کو پھیلا سکتے ہیں. مختار علی کا ماننے والا تابع ہے اور تابعین کا فریضہ فی الحال مصیبت پر صبر ہو.